Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I'm taking your 17th lectures of Material Science and Manufacturing Technology 2. So, in the previous series of the lecture, we tried to discuss about. In the last previous two series of the lecture, we start one another new chapter, which is about the forming and the shaping operations or the shaping processes. Right. In the last previous of lecture, we try to understand the two or three basic processes of the forming processes, which is the rolling process, extrusion process, drying process, etc. Right. I hope you understand through my lecture it's very well. uh, if you have a certain kind of the questions, you can ask me in the comment sections for the previous lectures. So in today's lecture we try to discuss about the one another new chapter, one another new topic of this chapter, which is the forging processes. In the forging process, the subject of the introduction, the subject of the interest, which is include the introductions and the objective of the forging processes, the classifications of the forging processes, which is the hammer or the drop forging process, press forging process, open die forging process, closed die forging process. Then next, which is the effect of the forging on the microstructures, and last, which is the residual stresses in the forging process and the typical forging defects. Meanwhile, we also try to discuss about the design of the design factors of the tool and die during the forging of the forging press work, right? So let's start the discussions about the forging process. So we start the basic with the introductions of the forging process, which is all about the forging is a working of the metals into the usual shapes by the hammering on the pressing. The forging यानी forging process एक ऐसी process है जिसमें आप अपने metal को required shape में आप produce कर सकते हो। किसकी हेल्प से? यानी आपको लेनी पड़ेगी हेल्प, जो कि है हैमरिंग प्रोसेस और दी प्रेसिंग प्रोसेस। आप या तो हैमर से उसको टीप टीप के, उसको फटका लगा लगा के आपको उसको रिक्वायर्ड शेप के अंदर उसको कन्वर्ट करना, या फिर आप उसको प्रेस ऑपरेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। द ओल्डेस्ट ऑफ द मेटल वर्किंग आर्ट्स, यानी ये जो है वो सबसे पुराना जो है वो मेटल वर्किंग आर्ट्स है, जिस मेथड की हेल्प से आप उस मेटल को रिक्वायर्ड शेप के अंदर कन्वर्ट करते हो। यानी आपने बहुत सारे प्रीवियस चीज़ में देखा होगा कि जैसे ह्यूमन लाइफ का इन्वेस्टिगेशन जब इंट्रोडक्शंस हुआ, तो पहले जो है वो अपने ऑर्डर्स जो है वो किस चीज़ से अपने जो है वो इक्विपमेंट्स बनाते थे, यानी इसी प्रोसेस का जो है वो यूज़ करते थे वो लोग। मेटल को हीट करके उसको रिक्वायर्ड शेपेड साइज में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। द रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी इज अकर्ड during the early of the industrial revolutions. The forging machines are now capable of making the parts which is ranging in the size of the bolts to the turbines rotor. अब यहाँ पे जो है काफ़ी सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के बाद यहाँ आज ऐसे काफ़ी सारे जो है वो मशीन्स, फोर्जिंग मशीन्स जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, जो फोर्जिंग प्रोसेस को यूज़ करके एक छोटा सा बोल्ट से लेके जो है वो टरबाइन के रोटर तक जो है वो फोर्जिंग प्रोसेस से बना सकते हैं। तो मोस्ट फोर्जिंग ऑपरेशंस आर कैरिड आउट इन द हॉट कंडीशंस, यानी बहुत सारी जो है ऐसे प्रोडक्ट यानी ऐसी प्रोसेस जो है वो इस कंडीशन में, यानी मेटल को जो है वो गर्म करके जो है वो फोर्जिंग प्रोसेस की जा सकती है। यानी एप्लीकेशंस में बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है वो हॉट फोर्जिंग प्रोसेस थे। ऑल्दो बट सर्टेन द मेटल्स आर केप्ट कोल्ड एंड फोर्ज, यानी ऐसा नहीं है कि कोल्ड कंडीशन में उसको फोर्ज नहीं कर सकते, ऐसे भी है हमारे पास प्रोविजंस है कि उसको हम लोग कोल्ड कंडीशंस में उसको फोर्ज कर सकते हैं। द फोर्जिंग ऑपरेशंस आर एज यू कैन सीज इन द फिगर्स, जो एक छोटे छोटे बोल्ट से लेके जो है वो एक बड़े साइज के अंदर हम लोग फोर्जिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, विच इज़ द एजिंग ऑपरेशंस, राइट, इज़ यूज्ड टू शेप द एंड ऑफ द बार्स। यानी एक छोटा सा जो एक हमारे पास बार है, राइट, उस बार को जो है जैसे आप पहले फिगर के अंदर देख लिए, तो पहले फिगर के अंदर मैंने क्या किया, एक डाई के अंदर जो है वो पूरा एक रोड जो है फिक्स कर दिया, राइट। अब वो मैक्सिमम एंड तक जो है वो वहाँ पे जो है वो चला गया है, वहाँ पे टच हो चुका है, राइट। अब जो बाहर जितना भाग
बचा है उसको जो है वो मुझे एक हेड के अंदर फिक्स करना है, राइट। हेड जैसा शेप जो है वो एक छोटा सा, जैसे अपने स्क्रू नहीं होते, स्क्रू के जो हेड होते हैं ना, ऐसे स्क्रू के हेड बनाने हैं। तो मैं क्या क्या करूँगा कि बाहर का जो भाग, जो बचा हुआ भाग है, उसको मैं टीप टिप के उसका हेड जैसा शेप्स बना दूंगा। अंदर वो है वो मैक्सिमम ज़्यादा जा नहीं सकता, विच ऑपरेशन विच इज कॉल्ड एज ए एजिंग ऑपरेशन। अब उसके बाद जो है वो ड्राइंग ऑपरेशन। द ड्राइंग ऑपरेशन इज रिड्यूस द क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्स्टेंटली जो नीचे वाला जो है वो आपका डाई जो है वो फिक्स रहेगा, ऊपर वाला जो है आपका पंच जो है वो प्रेस का यूज़ करके आप को सर्टेन एक लिमिट तक जो है उसका क्रॉस सेक्शन डायमीटर अगर कम करना है तो इस तरीके से आप ड्राइंग ऑपरेशन से उसका डायमीटर जो है वो कम कर सकते हैं। नेक्स्ट विच इज़ द द पियर्सिंग ऑपरेशंस एंड द पंचिंग ऑपरेशंस। यानी पियर्सिंग या पंचिंग ऑपरेशंस जो है वो बेसिकली कट करने के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आपको कुछ होल्स वगैरह जो है वो कट करना है, तो फिर ये जो इतने सारे ऑपरेशंस जो है वो फोर्जिंग ऑपरेशंस के अंदर काउंट होते हैं। तो फोर्जिंग ऑपरेशंस के अंदर कुछ ऐसे ऑपरेशंस जो है विच इज़ कॉल्ड एज अ फल्करिंग ऑपरेशन, विच इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द क्रॉस सेक्शंस एरिया ऑफ द पोर्शंस ऑफ द स्टोक, राइट। जो एक स्टोक तरीके से पार्ट जो रहता है उसका अगर हमें कोई पर्टिकुलर एरिया अगर रिमूव करना है तो फिर इस ऑपरेशन से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो मेटल फ्लो इज कैरिड आउट and away from the center of the fulcrus. So the forging of the connecting rod for the internal combustion engine, यानी इस तरीके से जो है वो एक रोड जैसा भाग जो है वो हम बना सकते हैं। तो फल्कर कोन्स इन द डिफरेंट शेप्स जो है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट फोर्जिंग ऑपरेशन विच इज़ द स्वेजिंग ऑपरेशन। यानी ये जो स्वेजिंग ऑपरेशंस है वो कहाँ पे यूज़ हो सकता है, तो स्वेजिंग ऑपरेशंस जो है इज़ यूज टू प्रोड्यूस्ड अ बार विथ अ स्मॉलर डायमीटर। जैसे एक बार है उसको स्मॉलर डायमीटर के साथ हमें प्रोड्यूस करना है, तो उस स्मॉलर डायमीटर्स के साथ वो होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। उस स्वेजिंग जो है वो एंड के अंदर किया गया एट द एंड एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट फॉर्मिंग ऑपरेशन। यानी स्विचिंग में होता क्या है, द स्विचिंग इज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ द फोर्जिंग, right, in which a metal is to be formed by a successions of the repeating of the hammer blow। repeatedly hammer को आप पटक पटक के एक switching operations करते हैं। the switching is a typical or the a special type of the forging in which the metal is to be formed by the successions of the repeat hammer blows। टिप टिप के आप उसको ऐसे एंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ we will move forwards to the classifications of the forging process। तो forging process जो है वो classification इसका कैसे होता है, तो classifications जो है वो बेसिकली दो तरीके के इसका क्लासिफिकेशंस जो है वो किया जाता है। किस तरीके से, एक जो है वो बाय इक्विपमेंट, राइट। तो बाय इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फोर्जिंग हैमर और द ड्रॉप हैमर जो है एक तरीके से ऐसे फोर्जिंग ऑपरेशन किए जा सकते हैं जिसमें फोर्जिंग हैमर और ड्रॉप हैमर का यूज़ किया जा सकता है। और जो है दूसरा जो है वो प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशंस है। और बाय प्रोसेस जो है उसका भी दो टाइप्स है, विच इज़ द ओपन डाई फोर्जिंग प्रोसेस एंड द क्लोज डाई फोर्जिंग प्रोसेस। अब उसको हम लोग थोड़े डेप्थ में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो फोर्जिंग मशीन्स जो है वो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। देयर आर द फ्यू बेसिक टाइप्स ऑफ द फोर्जिंग मशीन्स, जिसके अंदर जो है वो एक तरीके से ड्रॉप हैमर का यूज़ करके एक रैम तरीके का पार्ट रहता है जिसमें बीच में वर्कपीस को रख के आपको जोर से जो है उसको एक हैमर का स्ट्रोक देना है और आप वहाँ पे फोर्जिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। देन फिर एक रैम टाइप का फोर्जिंग मशीन्स है जिसमें एक फ्लाईव्हील को है वो हमें रोटेट करके जो है वो हमें रिटर्न स्ट्रोक के अंदर पूरा रोटेट कर देंगे। जैसे वो फ्लाईव्हील को छोड़ देंगे तो धीरे से वो फ्लाईव्हील जो है वो अपना मोमेंट पकड़ते पकड़ते स्पीड पकड़ते पकड़ते के ऊपर जो है वो एक फटका लगाएगा, वर्कपीस के ऊपर जो है वो फटका लगाएगा और यहाँ पे आपका जो है वो रिक्वायर्ड शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर क्रैंक टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स से होते हैं और हाइड्रोलिक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके यहाँ पे फोर्जिंग मशीन्स अब तक एस्टेब्लिश हुए हैं। द हैमर और द प्रेस फोर्जिंग प्रोसेसेस। हैमर
तो फोर्जिंग हैमर की अगर हम लोग बात करें तो देयर आर द टू बेसिक स्टेप ऑफ द फोर्जिंग हैमर विच इज़ द ब्रॉड हैमर एंड द पावर हैमर। एक जो रहती है वो ब्रॉड हैमर रहती है, एक जो रहती है वो पावर हैमर रहती है। तो फोर्जिंग प्रेसेस जो है वो दो तरीके के प्रेस रहते हैं। एक तो क्या मैकेनिकल प्रेस रहता है, दूसरा जो है वो हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो रहता है। तो मैकेनिकल प्रेस की अगर बात करें तो जो फ्लाईव्हील वाला प्रेस जो है आपने देखा था प्रीवियस इमेज के अंदर, वो एक तरीके का मैकेनिकल जो है वो प्रेस था। और उसके बाद जो है वो प्रेस आता है विच इज़ द हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोलिक मोशंस को यूज़ करके प्रोसेस को फोर्जिंग प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है। अगर अगर हम लोग ब्रॉड हैमर की बात करें तो फोर्जिंग प्रोसेस के अंदर द अपर डाई, यानी जो अपर वाला जो पोर्शन है डाई का, एंड द रेम्स आर रेज्ड बाय द फ्रिक्शंस रोल विच इज ग्रिप द ब्रोड्स, राइट। एक ब्रूड यानी एक रोड जैसा रहता है, वो जो है वो अपर पार्ट ऑफ द डाई एंड जो है एक रैम, वो दोनों को कनेक्ट करके होता है। आफ्टर रिलीजिंग द ब्रोड को हम लोग जब रिलीज़ कर देंगे, द रैम विच इज़ फोल्ड, यानी जो डंडा है वो दो दो रोलर जो है वो हम लोग जैसे ही जो है उसको दोनों साइड से खींच लेंगे, तो वो डंडा जो है अभी जो है वो जो ब्रॉड है ना वो हैमर, वो दो रोलर के बीच जो है वो ग्रिप में है। तो जैसे ही ये रोलर्स जो है वो उसको फ्री कर देंगे, तो वो धीरे से धड़ांग से जो रैम के साथ कनेक्टेड है, अपर डाई पोर्शन के साथ कनेक्टेड है, जो ब्रॉड है वो जाके वर्कपीस के ऊपर गिरेगा। द हैमर कैन स्ट्राइक बिटवीन द 60 to 150 ब्लोज पर मिनट, जो है वो 60 से लेके 150 तक जो है वो फटके जो है पर मिनट के अंदर लगा सकता है। वो डिपेंड करता है उसकी साइज और कैपेसिटी के ऊपर। द ब्रॉड हैमर is an energy restricted machines. The blue energy is supplied which is equal to the potential energy due to the weights and the height of the fall. This energy will be delivered to the metal workpieces to produce a plastic deformations. The forging hammers and the drop hammer. अब इसके बाद जो है वो ब्रॉड हैमर के बाद दूसरी बारी आती है फोर्जिंग हैमर की और ड्रॉप हैमर की। द ड्रॉप हैमर और द फोर्जिंग हैमर इज प्रोवाइड ए रैपिड इम्पैक्ट और द ब्लोज ऑफ द सरफेस टू द मेटल। यहाँ पे जो है वो एक तरीके के फोर्जिंग हैमर है, वो जो है वो रैपिड है, यानी कॉन्स्टेंटली जो है वो फटके लगा सकता है। द डाइज आर द टू डाइज आर इन द टू हेल्व्स, जो डाइज रहती है वो दो भाग में रहती है, लोअर यानी कि फिक्स्ड टू द एनविल एंड विच इज़ द अपर विच इज़ द मूव एंड अप डाउन विद द TUPs, राइट, टुप्स। यानी जो लोअर है वो फिक्स रहता है, अपर पार्ट्स रहता है वो जो है वो अप एंड डाउन जो है वो हो सकता है। यानी जो एनर्जी यहाँ पे जो प्रोड्यूस होती है इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द मेटल्स इन विच द मैक्सिमम इम्पैक्ट इज ऑन द मेटल सरफेस। द डाइज आर expressively being accurately machined from a special alloys which is susceptible to the thermal stroke. A drop forging is good for the mass productions of the complex shapes. ये जो रहता है जो ड्रॉप हैमर्स यानी ड्रॉप फोर्जिंग ऑपरेशंस जो है वो जो इमीडिएटली फटका लगाता है, रैपिड स्ट्रोक जो है वो प्रोड्यूस करता है, वो जो है वो मास प्रोडक्शंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस और काफ़ी अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जांपल विच इज़ द फोर्जिंग हैमर और द ड्रॉप हैमर। यहाँ पे जो है वो आपको एक प्रेस दिख रहा है, वो प्रेस के अंदर जो है वो जो है रैमर है, वो जो है वो ड्रॉप हैमर टाइप का हैमर यहाँ पे लगा हुआ है। वो जो है वो अपर पोर्शंस जो है वो अप एंड डाउन जो है वो स्लाइड हो सकता है और रैपिडली जो है वो स्ट्रोक लगा सकता है। द एनर्जी विच इज सप्लाइड बाय द ब्लो is equal to the potential energy which is due to the weight of the ram and the height of the fall. यानी जो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है वो कैसी हो सकती है, यानी वो जो है वो डिपेंड्स कर सकती है कि वो उसका खुद का जो है वो वेट कितना है और किस हाइट तक जो है वो यहाँ से गिरता है, उसके ऊपर जो है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है, वो वेट और जो हाइट जिस हाइट से वो गिरता है वो उसके ऊपर जो है वो डिपेंड्स कर सकती है। नाउ विच इज़ द अनदर टाइप विच इज़ द पावर हैमर। अब ये पावर हैमर जो है वो क्या चीज़ है जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। बेसिकली
जो पावर हैमर है वो प्रोवाइड करता है, वो ग्रेटर कैपेसिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। एक जो है वो यहाँ पे आपको एडवांटेज, यही चीज़ का एडवांटेज मिलेगा कि वो ज़्यादा कैपेसिटी जो है उसके साथ वो पावर प्रोड्यूस कर सकता है। इन विच रैम इज़ एस्लेरेटेड टू द डाउन स्ट्रोक, जो रैम रहता है वो डाउन स्ट्रोक में के साथ एस्लेरेट कर सकता है बाय अ स्टीम और अ प्रेशर, एयर प्रेशर्स इन द एडिशनल ग्रेविटी। यहाँ पे जो जो आपका रैम का स्ट्रोक लगेगा वो जो है वो बेसिकली स्टीम या फिर एयर को जो है एयर प्रेशर को यूज़ करके वो स्ट्रोक लगाएगा। अ स्टीम और द एयर प्रेशर इज ऑल्सो यूज टू रेज द रैम ऑन द अपर स्ट्रोक्स। अपर स्ट्रोक जो है वो यहाँ पे यूज़ होता है कि एक जो रैम के साथ जो कनेक्टेड है उसको वो फटका लगाने में, वो फटका लगाएगा स्टीम या फिर एयर प्रेशर कैसे। द टोटल एनर्जी इज सप्लाइड टू द ब्लो इनटू द पावर ड्रॉप विच इज गिवन बाय द this equation, which is the W is equal to 1/2 mv square plus PAH is equal to the mg plus PA into h. So m which is designated as a mass, v which is the velocity of the ram from the start of the deformations, then the g which is the accelerated of the gravity, then the p which is the air and the pressure, air pressure or the steam pressure acting which is during the ram cylinder which is downstroke, a which is the area of the ram cylinder, h which is the height at which the ram which is the drop. So next which is the hydraulic press for the forging. ये जो है वो एक हाइड्रोलिक प्रेशर के साथ जो है वो ऑपरेट यहाँ पे होता है। अब हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो हाइड्रोलिक में कैसे जो है वो ऑपरेट होता है, तो हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका जो रैम रहता है वो जो स्ट्रोक लगाएगा वो एक्चुअली जो है वो हाइड्रोलिक स्ट्रोक होगा, राइट। यहाँ पे जो है वो आपकी इफ़िशियंसी जो है वो और ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगी, राइट। द हाई प्रेशर फ्लूइड जो है हाइड्रोलिक जो है उसके अंदर एक हाइड्रोलिक फ्लूइड का यूज़ करके जो है वो रैम को जो है वो यानी एक टाइप का आपका हाइड्रोलिक प्रेस का जो है वो हैमर है वो ऑपरेटेड करेगा हाइड्रोलिक कंडीशंस के अंदर। जो आपका अपर पोर्शंस है वो अपर डाई पोर्शंस है वो रैम के साथ कनेक्टेड है, वो अप एंड डाउन जो है वो मूवमेंट कर सकता है। बीच के अंदर जो है आपका वर्कपीस लगा हुआ होगा एंड उसके नीचे जो है वो आपका लोअर पोर्शन ऑफ डाई होगा जो कि फिक्स होगा, राइट। जो हाइड्रोलिक प्रेस के जो पार्ट्स होते हैं यूजिंग ए हाइड्रोलिक प्रेस और ए मैकेनिकल प्रेस टू द फोर्ज ऑफ द मेटल्स, देयरफॉर व्हिच इज गिव द कंटिन्यूअस फोर्जिंग एट ए स्लोअर रेट। वो एक स्लोअर रेट के साथ कंटिन्यूअस फोर्जिंग कर सकता है। ये जो हाइड्रोलिक रहता है ना प्रेस, वो जो है विच इज़ प्रोवाइड ए डीपर पेनिट्रेशंस, वो जो है वो एक डीप पेनिट्रेशंस जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है, बेटर प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर सकता है, होमोजेनियस प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड कर सकता है एंड इक्विपमेंट इज़ एन एक्सपेंसिव। ये जो है वो इसका ड्रॉबैक हो सकता है कि इसका जो इक्विपमेंट्स रहता है, पूरा जो प्रेस रहता है वो काफ़ी जो है वो एक्सपेंसिव हो सकता है। यहाँ पे आपको एग्जांपल के साथ दिख रहा है कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो कैसे जो है वो वर्क करता है। ये फिगर के अंदर आपको हाइड्रोलिक फोर्जिंग प्रेस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, यानी इसके अंदर जो पिस्टन्स रहता है वो पिस्टन्स जो है वो हाइड्रोलिक मोशन के साथ अप एंड डाउन कर सकता है। दूसरा जो है इसमें कुछ नया चीज़ जो है वो नहीं की, ऑपरेटिंग कंडीशंस जो है वो ही सिर्फ जो है वो डिफरेंट हुई है। नाउ द मैकेनिकल प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशन, मैकेनिकल प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशन के साथ दो कंडीशन के ऊपर जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है। एक जो है वो फ्लाईव्हील के साथ ऑपरेट किया जा सकता है, दूसरा जो है वो कैम फोलोर के साथ जो है वो ऑपरेट किया सकता है, राइट। तो उसके अंदर जो है यानी प्रीवियसली जब मैंने आपको बताया था तब यही चीज़ आपके साथ मैंने डिस्कस कर ली थी कि जो रैम जो फ्लाईव्हील के साथ जो है वो कनेक्टेड है, जो जैसे वो एक जो है वो रैम जो है वो जो फ्लाईव्हील के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर जो है वो पूरा एक स्क्रू मैकेनिज्म है, राइट। आप जैसे उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर पूरा उसको रोटेट कर लोगे तो फ्लाईव्हील जो है वो अपर मैक्सिमम लिमिट के ऊपर जो है वो आ जाएगा। जब आप अब फ्लाईव्हील को जो स्टॉप कर दिया है, आपने उसका मोमेंट जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया, जैसे ही आप फ्लाईव्हील को छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे जो है वो क्लॉकवाइज रोटेशंस के अंदर जो है
वो स्क्रू मैकेनिज्म के साथ नीचे जाने की कोशिश कर देगा। अब वो एक फ्री एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करेगा और रैम को धीरे धीरे उसको जो है वो रैम धीरे धीरे नीचे आता जाएगा उस स्क्रू मैकेनिज्म के साथ, और वो एक फ्री एनर्जी प्रोड्यूस करके स्पीड को जो एक एक्सेलरेशंस के साथ जो है वो आपके वर्कपीस के ऊपर जो है वो फटका लगाएगा, और इस ऑपरेशन को जो है वो मैकेनिकल प्रेस फोर्जिंग ऑपरेशंस जो है वो बोला जाता है। यानी ये चीज़ जो है वो दो तरीके से, एक तो कैम फॉलोअर से और दो तरीके से आपका दूसरा फ्लाईव्हील के साथ जो है वो ऑपरेट किया जा सकता है। नाउ अगर हमें यही अब क्लासिफिकेशंस के जो है वो दूसरे पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं, तो दूसरे सेगमेंट के अंदर हम लोग बात करें तो जो क्लासिफिकेशंस रहता है, तो क्लासिफिकेशंस दो चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। वो दो चीज़ है विच इज़ द ओपन एंड क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशंस, यानी ओपन कंडीशंस में और क्लोज कंडीशंस में। तो आप पहले वाले फिगर आप देखें, जो ओपन यानी अपर और लोअर पार्ट ही है, जो बाकी के दो साइड से जो है वो पूरा आपका पार्ट रहेगा वो ओपन रहेगा। सिर्फ जो है आपका लोअर डाई पोर्शंस रहेगा वो फिक्स रहेगा, अपर वाला पोर्शंस है वो मोमेंट कर सकता है अप एंड डाउन, और आपको वो बीच में जो है वो आपका मटेरियल जो है वो जिस मेटल को आपको शेप कन्वर्ट करना है उसको रख के फिर आप इमीडिएट फोर्जिंग फोर्स लगा के जो है वहाँ पे आपको शेप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लोज डाई की बात करें तो दोनों साइड के दोनों तरीके से जो है वो आपका मेटल जो है वो एक तरीके से जो है वो पूरा डाई के अंदर क्लोज होके उसका शेप जो है वो फॉर्मेशंस रहता है। और थर्ड विच इज़ द इम्प्रेशंस डाई फोर्जिंग, ये चीज़ आपको फिगर के अंदर यहाँ पे दिख रही है। तो अब ओपन डाई फोर्जिंग जो है वो कैसे यहाँ पे वर्क करता है वो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है। दो तरीके के शेप्स है, द फोर्जिंग ऑफ द लार्ज टर्बाइन शाफ्ट, यानी शाफ्ट कैसे हम लोग इस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं। यानी जो है मेरे पास जो है वो एक राउंड बार था जिससे मुझे शाफ्ट जो है वो प्रोड्यूस करना था। तो मैंने क्या किया, तो बेसिकली जो शाफ्ट थी, तो शाफ्ट मुझे जो एक राउंड बार से फॉर्म करना था, तो मेरे यहाँ पे आप देख लीजिए कि एक मेरे पास ओपन कंडीशंस के अंदर अपर डाई और लोअर डाई है। जो लोअर डाई है वो मेरा फिक्स रहेगा, अपर डाई वो अप एंड डाउन मोशंस कर सकता है। यानी अपर और लोअर दोनों जो डाई है वो जो मूवेबल डाइज है उसको हम लोग अप एंड डाउन मोशंस दे सकते हैं। उसके बीच जो है वो मैंने शाफ्ट जो है जिस रोड में से मुझे शाफ्ट बनाना था उस राउंड बार को बीच में मैंने फिक्स कर दिया है। वो फिक्स करने के लिए हम लोग किसी भी तरीके का जो है वो फिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। उस फिक्सचर को यूज़ करके जैसे मैंने राउंड बार को यहाँ पे क्लोज फिक्स्ड कर दिया, अब ये जो पूरा कंडीशंस हो रहा है वो ओपन कंडीशंस के हो रहा है। यानी आप जो है वो पूरा कोई दूसरी तरीके से कोई क्लोज स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये अप एंड डाउन हैमर की ब्लो की वजह से जो है वो धीरे धीरे जो है उसके क्रॉस सेक्शंस के अंदर यहाँ पे आपको चेंज ऑब्जर्व होता। वो जो आपका जो रोड है वो धीरे धीरे रोटेट होता जाएगा, और रोटेट होने की वजह से जो है वो उसका क्रॉस सेक्शंस जो है वो चेंज होता होता राउंड, उसका जो है वो क्रॉस सेक्शंस राउंड पेरिफेरी में कम होता जाएगा। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा आपको एग्जांपल दिख रहा है कि अगर आपका जो पाइप है उसका क्रॉस सेक्शंस डायमीटर आपको कम करना है, तो क्या होगा कि अंदर जो है वो एक आपका जो पाइप है राइट, उसका डायमीटर आपको कम करना है, थिकनेस कम करना है। तो आप देख लीजिए इनिशियल थिकनेस बहुत ज़्यादा था और उसके साथ आपको थिकनेस भी कम करना था और क्रॉस सेक्शंस बढ़ाना था। तो मैंने एक अंदर की साइड जो है वो एक आपका पाइप जो है वो तो रोटेट कर ही रहा है राइट। अंदर जो है वो मैंने एक हार्ड जो है एक लोअर डाई का पोर्शंस जो खुद एक रोटेशनल सॉलिड एक पार्ट रहेगा, उसको मैंने अंदर की साइड फिक्स कर दिया। ऊपर जो है वो कॉन्स्टेंटली वो जो है रहेगा वो फिक्स रहेगा, पाइप जो है वो रोटेट करता जाएगा। अब दोनों के बीच मैंने उस पाइप को जो है फिक्स कर दिया है, और ऊपर से जो है वो अपर रैम और डाई अपर डाई वाला जो रैम के साथ कनेक्टेड पोर्शंस है वो हैमर जो है वो धीरे धीरे जो फटका लगाएगा, तो उसका क्रॉस सेक्शंस जो है वो कम होता जाएगा, और अंदर की साइड नीचे की साइड से जो है वो एक जो सॉलिड बार है वो वहाँ पे सपोर्ट करेगा और उसका क्रॉस सेक्शंस जो है उसको चेंज करने की कोशिश करेगा, विच इज़ द ओपन डाई फोर्जिंग ऑपरेशंस। अब यहाँ पे जो है वो आपको मैं क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशंस की यहाँ पे डिस्कशंस करूँगा।
तो क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशंस के अंदर बेसिकली क्या चीज़ होती है? तो क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशंस के अंदर अगर हम लोग बात करें तो क्लोज डाई फोर्जिंग ऑपरेशंस के अंदर जो बेसिक चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है वो यहाँ पे आपको ऑपरेशंस तो पूरा दिख रहा है। द वर्कपीस इज डिफॉर्म्स बिटवीन द टू डाइज विच इज़ हेल्व्स इन द टू डाइव हेल्व्स, यानी आपका डाइज रहेगा जो जो रहेगा वो दो पार्ट के अंदर रहेगा, विच इज़ कैरी द इम्प्रेशंस। इसके अंदर जो इम्प्रेशंस हमें प्रोड्यूस करनी है अपने वर्क पीस के अंदर वो इम्प्रेशंस डाई के अंदर रहती है, पर वो दो पार्ट्स दो पार्ट के अंदर रहती है, राइट। द डिजायर्ड फाइनल शेप्स, द वर्क पीस इज डिफॉर्म्स अंडर द हाई प्रेशर्स इन ए क्लोज्ड केविटी। जो वर्कपीस रहता है वो उस शेप के अंदर डिफॉर्म हो जाता है, वो हाई प्रेशर्स के साथ डिफॉर्म्स होता है कि एक क्लोज्ड केविटी के अंदर है, नॉर्मली विच इज़ यूज्ड फॉर ए स्मॉलर कंपोनेंट। नॉर्मली जो है वो ये जो है वो यूज़ होता है एक स्मॉल कंपोनेंट के साथ यूज्ड होता है। द प्रोसेस विच इज़ प्रोवाइड अ प्रिसिजन फोर्जिंग विथ अ क्लोज डायमेंशनल टॉलरेंसेस। एक क्लोज डाइज आर एक्सपेंसिव, ये जो क्लोज डाइज रहती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है। अब इसमें एक डिफेक्ट के तौर पे एक चीज़ हो सकती है, यानी फ्लैश यहाँ पे होता है। आप जैसे ही जो है वो आप हॉट कंडीशंस के अंदर जो है वो आप मेटल को फोर्ज करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या हो सकता है कि फोर्जिंग के अंदर अपर और डाई पोर्शंस के बाहर जो है वो छोटा सा मेटल है वो बाहर निकल जाएगा, वो फ्लैश, यानी वो आपके पूरे पार्ट के साथ तो जॉइंट ही रहेगा पर एक्सेसिव मेटल जो है वो एज ए फ्लैश के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो वो जो है वो आपको सेफली जो है वो मशीनिंग करके जो है वो रिमूव करना पड़ता है। ये जो है वो एक तरीके का, एक बोल सकते हैं ना, एक तरीके का डिसएडवांटेजेस जो है वो यहाँ पे फोर्जिंग प्रोसेस में यहाँ पे डेवलप्ड होता है। अब इसका जो फोर्जिंग प्रोसेस के अंदर मुझे आपके साथ एक ये डिस्कशंस करनी है, तो ये डिस्कशंस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो इसका डिज़ाइन पार्ट है। इसका डाई का डिज़ाइन कैसे करता है, टूल का डिज़ाइन कैसे करता है, तो इस द परफॉर्म्स डिज़ाइन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट और द क्रिटिकल स्टेप्स इन दी फोर्जिंग डिज़ाइन, राइट। इसका डिज़ाइन करना वो एक काफ़ी क्रिटिकल स्टेप्स है, राइट। द प्रॉपर द परफॉर्म्स डिज़ाइन विच इज़ एज्यूम्स अ डिफेक्ट फ्री फ्लो। इसके अंदर अगर आपका परफेक्ट डिज़ाइन होगा तो वो एक परफेक्ट जो है वो मटेरियल जो है वो फ्लो हो सकता है, वरना डिफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। टू कंप्लीट द डाई फिल्स एंड द मिनिमम फ्लैश लॉस। फ्लैश जो है वो काफ़ी एक, अगर आपका डिज़ाइन जो है वो एक्यूरेट होगा तो फ्लैश जो है वो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। द मेटल फ्लो इज कंसिस्ट ओनली इन द टू बेसिक स्टेप। तो मेटल जो है वो दो तरीके के अंदर फ्लो होती है। द एक्सट्रूजन्स, द फ्लो पैरेलल टू द डायरेक्शंस ऑफ द डाई मोशंस, राइट। और अपसेटिंग, द फ्लो विच इज़ परपेंडिकुलर, यानी पैरेलल डायरेक्शंस में और द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर जो है वो डाई मोशंस के अंदर मटेरियल जो है वो फ्लो करता है। However, the both types of the metals flow which is occur simultaneously, ये दो motions है वो simultaneously जो है वो performs होते हैं। We needs to identify a neutral surface since the metal flow is away from the neutral surface in a directional perpendicular to the die motions। सो यहाँ पे आप जो है वो मेटल फ्लो जो है वो किस तरीके से पार्ट प्ले करता है ये आपको इस फाइनाइट एलिमेंट के मोड से जो है ये यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। किस तरीके से जो है वो हैमर का ब्लो लगते ही जो है आपका एक तरीके से शेप ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये आपको दिख रहा है, राइट। The finite element analysis was originally developed to the models to the elastic deformations of the complex structures, but recently has been extended to covers a large plastic deformations under the real stress system। तो जब आप डिज़ाइन करते हो तो फिर काफ़ी सारे फैक्टर्स जो है वो यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं। वो जो है
which is the required properties of the dye materials, which is the thermal stroke resistance, क्योंकि ये जो है वो पूरी प्रोसेस है वो हॉट कंडीशंस के होती है, तो फिर वो जो है वो थर्मल कंडीशन के अंदर जो है वो कैसे उस शॉक को रेजिस्ट कर पाएगा। थर्मल फैटिक रेजिस्टेंस फेलियर नहीं होना चाहिए। हाई टेम्परेचर स्ट्रेंथ, वो हाई टेम्परेचर के अंदर मेटल जो है वो डाई हो वो जो है वो पूरा उस हैमर का ब्लो जो है स्ट्रोक हो वो रेसिस्ट कर सके, उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। हाई वियर, उसमें जो है वो डाई के अंदर वियर आउट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाई टफनेस एंड डक्टिलिटीज़ होनी चाहिए उस मटेरियल के अंदर। हाई हार्डनेबिलिटीज़ होनी चाहिए। हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप उस को अंदर बाहर निकालेंगे तो फिर वो एग्जैक्ट डायमेंशन के साथ जो है वो हमें पार्ट्स जो है वो मिलना चाहिए। एंड हाई मशीनेबिलिटीज़, और डाई जो है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको अगर सपोज़ आपको मशीनिंग करना पड़े तो फिर आप मशीनिंग भी कर पाओ, ऐसा होना चाहिए। द डाई मटेरियल्स इज अलाउड विच इज़ द एलॉयड स्टील, वो बेसिकली एलॉयड स्टील होते हैं जिसके अंदर क्रोमियम, राइट, जो एक तरीके से मशीनेबिलिटीज़ और द स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मोलिब्डेनियम, वेनेडियम, और ये जो टूल स्टील जो है वो डाला होता है इसके अंदर। कास्टिल्स एंड द कास्ट आयरन, ए हीट ट्रीटेबल सच आर नाइट्रेटिंग, इसके अंदर आप हीट ट्रीटमेंट के अंदर उसको हाइड्रेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आप नाइट्रेटिंग प्रोसेस जो है वो कर सकते हैं, और आप उसके ऊपर जो है वो क्रोमियम प्लेटिंग्स जो है वो कर सकते हैं, जिससे आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी जो है वो बहुत अच्छी मिलेगी। और इसके साथ जो है वो आपके जो डाइज है उसकी लाइफ जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। देन द डाई लाइफ इस कैन बी इंक्रीज्ड बाय, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो कि दो स्टेप्स है इंक्रीज करने के। एक तो कि आप यू हैव टू इम्प्रूविंग द डाई मटेरियल सच एज यूजिंग द कंपोजाइट डाइज, राइट। आपको कंपोजाइट्स डाई को यूज़ करके उस लाइफ को आप मटेरियल को बचा सकते हैं। एंड यूजिंग द सरफेस कोटिंग, डाई के अंदर आप सरफेस कोटिंग करोगे तो, और सेल्फ लुब्रिकेटिंग जो है वो कोटिंग करोगे तो फिर उसका लाइफ जो है बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। द अल्ट्रा हार्ड सरफेस कोटिंग विच इज़ गिव और इम्प्रूविंग द डाई लाइफ विच इज़ रिड्यूस द एनर्जी इनपुट, reduce the die related up times and the down times, and which is also reduce a particular emissions from the lubricants.